Good morning, student. Welcome in your bio class. So we are continue chapter 8, Cell, the unit of life, where you have read introductory part, the life span of G. and Ramchandran, 1922 to 2001, and in this time in his time period he done uh, he done work on protein. Clear, student? Collagens, the solving the structure of collagens. Collagen is a protein. Now after that you have read what is cell. The and Anton von Leeuwenhoek first saw and described the life cell. After that, you have read cell theory. Cell theory. What is cell theory? All the conclusions point of the cell theory. All living organisms are composed of cell and product of cell. All cell arise from pre-existing cell. This line is very important because it will become in form of questions. All cell arise from pre-existing cell. Now next 8.3, overview of cell. In overview of cell we will observe cellular name of the cellular organelles, the cellular body which is present inside the cell. Okay, student, we will read cellular organelles, then some their shape, structure, how it is shaped, its structure. This will become in overviews of cell. Okay, student, we have already observed that cell is an onion peel and the human chick cell under the microscope. हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ह्यूमन चिक्स को या अनियन पील्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ठीक है. देयर आर जस्ट लेट अस रिकॉर्ड द स्ट्रक्चर. द ओनियन सेल विच इज टिपिकल प्लांट सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल. ओनियन सेल में क्या दिखाई दे रहा है? ओनियन सेल की स्पेशलिटी क्या है? सेल वॉल. सेल वॉल इज प्रेजेंट. सेल वॉल प्रेजेंट. क्लियर? जो क्लियरली टिपिकल प्लांट सेल में ऑब्जर्व होता है. इट इज सेल वॉल क्या है? आउटर कवरिंग के फॉर्म पर. यदि एक सेल का स्ट्रक्चर है तो जो इसकी आउटर कवरिंग है ये दिस विल बी सेल वॉल. क्लियर? एंड it is outer boundary and just within it is the cell membrane. और इसके सेल वॉल के अंदर कौन सी एक और मेम्ब्रेन होती है? this one is called as cell membrane. तो दो मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में. 2 membranes are there. बट ह्यूमन चिक सेल को यदि ह्यूमन चिक सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होगी, डेंस मेम्ब्रेन होगी. ठीक है. और वो डेंस मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी. एक क्लियर कट एक मेम्ब्रेन होगी. दिस विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो हियर वन थिंग इज वी हैव क्लियर देयर द अनियन सेल शो सेल वॉल and human chick cell show plasma membrane. Human chick cell there is no cell wall. Clear? Inside each cell there are dense membrane bound structure called nucleus. और हर सेल के अंदर एक बाउंडेड सेल और मेम्ब्रेन से बाउंडेड एक स्ट्रक्चर होता है. इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की स्पेशलिटी क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. कैसा है ये? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. मेम्ब्रेन बाउंड. क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ
कि nucleus is a cellular organism which is consist of its own membrane. This nucleus contain the chromosomes which is turned contain a genetic material. और इस nucleus के अंदर genetic material है. We will discuss in detail when we will read cellular organelles. Clear? After that, there are when nucleus or the cellular organelles are present without their membrane, or sometimes it is not clearly seen, so this type of cell is called prokaryotic cell. So next term is prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक टर्म्स क्या शो कर रहा है? मीन्स प्रिमिटिव सेल. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, primitive cell. Clear? And eukaryotes is a primitive cell. It is prokaryote. It is prokaryotic. एक और टर्म आया है यूकैरियोट. यूकैरियोट मीन्स the cellular organelles are well defined and some cellular organelles contain their own membrane. It is the characteristic feature of eukaryotic cell. A semi-fluid matrix called cytoplasm. What is cytoplasm? Cytoplasm is a semi-matrix called cytoplasm. Its occupied volume of the cell. The cytoplasm is main arena of cellular activities. cytoplasm important ये है कि सेल के अंदर की सब एक्टिविटीज़ साइटोप्लाज्म के में ही हो रही है. यदि साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेलुलर एक्टिविटीज़ नहीं होगी. सो वी कैन से साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़. साइटोप्लाज्म में ही सेलुलर एक्टिविटीज़ पॉसिबल है. द साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. एरिना का मतलब एक फील्ड है, क्षेत्र है. यदि साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो ये एक्टिविटीज़ नहीं होगी. वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन इट to keep the cell in a living state. Yes, we have already read cell is a unit of living organisms. It means cell is always present in living state. और ये living state क्यों है? Because so many cellular activities consist in cytoplasm. Or main arena of cellular activities in plant and animal cell is basically cytoplasm. Besides the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane bound structure. It is called organelles. अब एक और टर्म आया है organelles. What is the meaning of organelles? There are so many different type of structure present inside the cell which perform different functions. It is called cellular organelles. सेलुलर ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल के अंदर कंसिस्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जो अलग अलग फंक्शंस के लिए स्पेसिफाइड किए हैं. इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनेल्स. ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज़ शो बाय ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किससे शो करते हैं? इट इज़ ER. गोल्जी एपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, microbodies and vacuoles. So how many cellular organelles you have read here? It is endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria in animal cell, dictyosome in plant cell, microbodies and vacuoles. The prokaryotic cell lack these such membranes bound structure organelles. ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेलुलर ऑर्गेनेल्स क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं और
प्रोकैरियोटिक सेल में देयर आर सम सेलुलर ऑर्गेनेल्स which composed of its own membrane, but in prokaryotic membrane bound organelles are totally absent. So here we have discussed difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. I hope student you have understood these key terms. So I always focus on key terms, and key terms is very important, student. So you just read again and again or repeated many times, especially key terms. Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells. Ribosomes एक ऐसा सेलुलर ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, वो ऑलवेज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है. Clear? Within a cell, ribosomes found only in the cytoplasm but also within the two organelles. सेल के अंदर राइबोसोम किसके पास है? सिर्फ साइटोप्लाज्म के पास. नॉट इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अलावा देयर आर टू स्ट्रक्चर्स आर अगेन देयर. इट इज क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो राइबोसोम्स की प्लेस कहाँ कहाँ हो गई? राइबोसोम जो कि विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इट इज़ present in prokaryotic cell and eukaryotic cell. It is basically its place inside the cytoplasm. cytoplasm इसकी place होती है, but इसके अलावा there are two places where ribosomes are present. It is basically chloroplast. क्लोरोप्लास्ट. राइबोसोम क्या है? इट इज़ प्रोटीन सिंथेटिक ऑर्गेनेल्स. ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है. और सेकेंड वन क्लोरोप्लास्ट एंड सेकेंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. तो हेयर one thing is important. The place or the cellular organelles which consist of their own ribosome. Basically ribosome, it is present in cytoplasm, but there are two cellular organelles which consist of their own ribosome, mitochondria and rough endoplasmic reticulum. We will discuss this term later on. When ये terms एक अलग cellular organelles के form पर आएगा, we will again describe it. Clear? So next point is animal cell. Animal cell contain non-membrane bound structure called centrosome. Here you make a table membrane bound cellular organelles or the organelles which lack their membrane. ठीक है. So membrane bound एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाउंड में क्या आपने रीड किया है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया. क्लियर स्टूडेंट? क्लोरोप्लास्ट. क्लियर? प्लाज्मिड्स. दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. एंड विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर it is basically centrosomes and ribosome. Clear? So you just define membrane bound structure, non-membrane bound structure in your notebook. Clear? So cell differ. अब आता है size of cell. Size of cell is a very different type of cell are present there. Their shape is also different and their activities. ये clear है? यदि shape और size change होगा तो उसकी फंक्शनिंग भी चेंज हो जाएगी और शेप भी चेंज हो जाएगा. तो किसी भी ऑर्गेनेल्स का या ऑर्गेनिजम्स का जो शेप है, साइज़ है और उसकी एक्टिविटीज़ है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सेल पर, सेल के शेप पर, सेल की एक्टिविटीज़ पर. फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा.
You just note this term mycoplasma. It is smallest cell. Smallest cell. कितना है इसका? 0.3 μm in length, while बैक्टीरिया की जो शेप है 3:5, मतलब बैक्टीरिया से भी छोटा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया भी आप यू कांट सी बाय नेकेड आइज, ठीक है, इससे भी एक छोटे सेल होती है। दिस इज माइकोप्लाज्मा। क्लियर? बैक्टीरिया सेल बेसिकली जो है 3:5 माइक्रो, और माइक्रो उसका जो मेजरमेंट है, माइक्रो मीन्स इट इज़ वेरी 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 स्मॉल यूनिट. द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज अ एग ऑफ ऑस्ट्रिच, और सबसे बड़ी जो सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है. अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, human red blood cells are 7 mm in diameter. ह्यूमन ब्लड सेल्स काफ़ी अच्छे साइज़ का होता है, 7 mm in diameter. Nerve cells is a longest cell. Nerve cells longest cells है. Nerve cell longest. Clear? Nerve cell is a longest. ठीक है. माइकोप्लाज्मा, plasma, smallest, egg of ostrich, it is largest single cell, egg of ostrich, largest single cell structure. So this is specific terms which you have to keep in your mind. Now we will read detail structure of prokaryotic cell. Shape is also very different. It may be disc shape, it may be polygonal shape, it may be columnar shape, cuboid shape. So we can see different shape of the cell by different figure. Red blood cells round and biconcave. This one is biconcave. ये कैसी है? Biconcave. This one is round. It is amoeboid shape, WBC. ये क्या है? WBC, amoeboid shape. Amoeboid, इसका शेप बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है. It are changeable. Then columnar epithelium cells, long and narrow. It is nerve cell, branched and long. This is cell body. This is dendrites. Clear? So this is a branch structure. Now tracheids, it is elongated. Tracheids आपको clear होना चाहिए. It is part of xylem. ठीक है? ट्रैकिड्स क्या है? जाइलम का पार्ट्स है. मेसोफिल सेल, राउंड एंड ओवल. तो या प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, देयर आर ह्यूज शेप और डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स आर present. Their size is also variable, their shape is also variable. So I think student you have cleared it. This is called as overviews of the cell. Clear? Now next term is prokaryotic cell. Prokaryotic cell, it is represented by bacteria, blue green algae, mycoplasma and PPLO, puro pneumonia like organisms. PPLO एक pneumonia like organisms है. ठीक है? The common name is PPLO. These are generally small and multiply more rapidly. It is characteristic feature of prokaryotic cell. ये यूकैरियोटिक सेल से स्मॉल होते हैं बट मल्टीप्लाई मोर रैपिडली. अभी आप देख रहे हो कि बैक्टीरियल डिजीज़ कितनी जल्दी इंक्रीज होती है. ठीक है? वायरस डिजीज़ उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है. क्यों? वायरस सेल होस्ट को यूज़ करती है.
होस्ट मैकेनिज़्म को यूज़ करती है, तो वो होस्ट मैकेनिज़्म को पूरी तरीके से ट्रैप कर लेती है, उसकी सेल को पूरी तरीके से ट्रैप कर लेती है और बहुत जल्दी स्पीडली मल्टीप्लाई होती रहती है, ठीक है। तो वी कैन से प्रोकैरियोटिक सेल की स्पेसिफिक नेचर है कि वो मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता रहता है इन कंपैरिजन्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। फॉर बेसिक शेप बैक्टीरिया को यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल का शेप एंड साइज देखें तो बेसिकली यहाँ पर 4 बेसिक साइज होते हैं। फर्स्ट वन इज बैसिलस टाइप, सेकंड कोकस टाइप, कोकस मतलब मीन्स स्फेरिकल्स, विब्रो और कॉमा शेप, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड स्पेरिलियम और स्पाइरल। सो वी हैव सीन there are 4 type of cell. Typical bacterial cell, this one, flagellated structure 1 or 2 μm, PPLO, ये और भी बहुत छोटा है, वायरस ये बहुत ही छोटा पार्टिकल्स है, एंड इट इज़ बेसिकली वायरस, it is called as particles when it is not contact with living organisms. जब तक ये living organisms से contact में नहीं है तब तक it will be asked as particles. लेकिन जैसे ही living organisms के contact पे आ जाता है it start multiplications in host body and continuously divide many times it's divide and occupied complete host cell. होस्ट के सेल को ऑक्यूपाइड करके और ये रेगुलरली स्पीडली बढ़ता रहता है, ठीक है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल और ये वायरस सेल, ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है। बेसिकली डिफरेंस के लिए हम लोग इस सेल को स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दिस वन इज़ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लगा हुआ ये, दिस वन इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस वन इज़ गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सेल वॉल से लगे हुए माइक्रो बॉडीज़ हैं जो कि सेल के रिजिडिटी को मेंटेन करेंगी, ठीक है। दिस वन इज़ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर का जितना भी, और दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। Clear, student? And nucleoplasm and cytoplasm commonly called as protoplasm. Clear? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कॉमनली क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो देर आर सम टर्म्स गिवन देयर, साइटोप्लाज्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, क्लियर। साइटोप्लाज्म देर आर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, genetic material is basically naked, not overlapped by the nuclear membrane. So this discussion we are reading basically in reference of prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल के रेफरेंस में हम ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर को रीड कर रहे हैं। क्या रीड कर रहे हैं कि फ्लूइड मैट्रिक्स में साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट देयर बट नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर डिफाइन नहीं होता है, ये फ्री होता है, न्यूक्लियस में नहीं होता, फ्री एक प्लेस होती है, उस प्लेस में बहुत सारे आरएनए या डीएनए कंबाइंड इकट्ठे हो जाते हैं और वहीं पे ही रहते हैं। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज न्यूक्लियस, बट इट इज़ नॉट ट्रू न्यूक्लियस। तो वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है और उसके बाहर ही होते हैं, ठीक है। जनरली सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। कैसा डीएनए? सर्कुलर डीएनए। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोम कॉल्ड डीएनए। दिस स्मॉलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड्स। और ये जो डीएनए जो सर्कुलर फॉर्म पर होता है और एक स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लेता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स अभी आगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस डिस्कस कर लें, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल को एज ए वेक्टर लिया जाता है और वो उसका बेसिकली प्लाज्मिड्स पार्ट्स को ही यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। सो इस टर्म्स को यू जस्ट कीप इन योर माइंड। द प्लाज्मिड्स डीएनए confirms certain
यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। मतलब ये बिल्कुल हेरिडिटरी मटेरियल के तरीके से वर्क करता है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज़। और ये जो कैरेक्टर है इसका, कभी कभी ये एंटीबॉडीज़ के लिए रेजिस्टेंस होता है। ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है कि प्लाज्मिड डीएनए यूज एज मॉनिटरिंग बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशंस विद फॉरेन डीएनए। यस, जो अभी हमने आपको डिस्कस किया है कि बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत यूज़ होने वाला है। सो दिस इज़ सम पॉइंट्स अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल और प्लाज्मिड्स. Now in next video we will discuss cell envelope and its modification. अब उसके हम सेलुलर जो ऑर्गेनेल्स के पार्ट को each and every parts we will read in detail. I hope students you have understood this one and you have enjoyed also. So thank you. Have a nice day, student.